Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 9th August, 4 p.m. and I welcome you all to market analysis outlook and what will be our expectations for the next coming week, because now it's the weekend, right, and the markets will be closed tomorrow and day after tomorrow. So we'll discuss that how are the markets today, what discussion we had yesterday. Did the markets perform according to our discussion? We'll discuss that. We'll look at the OI data, what OI data is going in the market for the next week. We'll look at Nifty and Bank Nifty charts, what the charts are saying. And it's going to be a little bit long discussion wherein we will be discussing from futures chart, from spot chart to OI data, right? We'll discuss pretty much everything in depth analysis of what can happen next week, right? तो थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा. सो वीकेंड है आपके पास, यू माइट बी हैविंग फ्री टाइम ऑन सैटरडे संडे, सो नो नीड टू रश कि भाई आज ही देखनी है. आराम से सैटरडे संडे देखो. इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो, right? And I hope ki you won't go empty handed. I'll try to explain a couple of price action points also, what we followed this week, and probably in-depth analysis and discussion. And so let's start. But before even starting the discussion, before even starting the analysis, I just want to mention that if you're someone from the Telegram group and you're liking the video, like, comment, and share the video to your trader friends. If you are following the videos, if you're following the analysis and you're liking it, do share. If you are someone watching the video for the first time, do leave a comment, subscribe the channel if you're liking the content, and stay tuned for more interesting analysis and learning videos. I'll keep leaving the link to the videos in the top right section of this video, so that my Fibonacci setup, my trading moving average trading setup, psychology points. So do watch all those videos also. It will help in the longer run in your trading career. And yeah, so that's it. Let's start the discussion. Let's start the analysis. चलते हैं सीधा निफ्टी के चार्ट पे. अब देखो, नेक्स्ट वीक का डिस्कशन है, तो सीधा वीकली चार्ट पे चलते हैं. एंड आई विल प्रॉब्ली रिमूव ऑल दीज ड्राइंग्स, राइट, एंड ट्राई टू मेक यू सी कि व्हाट इज एग्जैक्टली नाउ वी आर लुकिंग एट. देखो, अगर आप, इफ़ यू क्लियरली सी, राइट, वी हैव क्लोज्ड बिलो द प्रायर वीक लो. और जो थ्री कैंडलस्टिक रूल्स होता है, राइट, कि आपका योर हाई should be lower than the prior high, closing should be lower than the prior low, not prior close but prior low, and low should be below the prior low. तो वो कैंडल स्टिक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डेली पे, तो मार्केट ने यहाँ पे बना ही दिया था. ये देखो, मार्केट रिवर्टेड इट्स ट्रेंड here only. All right, but today on the daily side we have reversed the trend again, but on the weekly side we have reversed the trend. And after how many weeks, अगर आप काउंट करोगे ना, यहाँ से रफली ये जितनी वीक्स हैं, आई थिंक 8 to 9 वीक्स होगी रफली. सो आफ्टर यू नो 2 मंथ्स, जून में हमने स्टार्ट किया था. अगर आप इसको इग्नोर कर दो, ये इलेक्शन वाली अनॉमली है, इसको इग्नोर कर दो. सो और भी पीछे जाके हमने लास्ट यहाँ पे क्लोज दिया था. दिस वॉज आर ट्रेंड चेंज, बट वी टुक अ सपोर्ट फ्रॉम what 20 weekly MA, right? So now a probability arises, and it is a high probability कि if we cross this level on the downside, previous week low, it's a smooth fall, everybody knows it. अगर अब बट ये आपको सोचना होगा कि अगर ये सबको पता है तो क्या ये होगा? होगा, एग्रीड होगा, बट कब होगा, दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस इज ओनली वाई वी हैव दीज डिस्कशंस टू यू नो एनालाइज कि ये चीज़. देखो, आप कभी एंटिसिपेट नहीं कर सकते मार्केट से कि ये होगा या कब होगा, क्योंकि ऑप्शन इज अ गेम ऑफ टाइम एंड मोमेंटम. अगर आप बहुत लंबे टाइम तक एक ऑप्शन में बैठे हो, यू विल पे द प्राइस ऑफ डी के. और अगर आपको मोमेंटम नहीं मिला तो ऑप्शन वैसे ही डीके कर जाएगा. तो यू नीड टू यू नो if you are trading in options and particularly buying, you need to be very particular about the time, that you only trade when the momentum is there, and you only trade when the timing is perfect, right? तो ये हम डिस्कशन करेंगे कि किस सिनेरियोज में, किस प्रोबेबिलिटी में ये फॉल आ सकता है. विल नेवर एंटिसिपेट, विल नेवर प्रेडिक्ट कि काश ये हो जाए, आई होप ये हो. विल ओनली एंड ओनली एनालाइज कि इस लेवल के टूटने पे ये होता है. बिकॉज देखो क्या होता है ना, कि एज अ ट्रेडर, इन्वेस्टर को कुछ नहीं है, उसको देखना है भाई मेरा पैसा बन रहा है. जब तक वीकली डेली में मेरा 50 100 EMA के ऊपर है, मार्केट वैसा मेरे को बनाते हुए देगा. बट एज अ ट्रेडर यू नीड टू फिगर आउट
कि लेवल क्या है, क्योंकि एज ए ट्रेडर एक लेवल के ऊपर सारी दुनिया बुलिश होती है और एक लेवल के नीचे सारी दुनिया बेरिश होती है। ऑल राइट, सो वी नीड टू फिगर आउट कि कब किस प्रोबेबिलिटी में किस सिनेरियो में ये चीज़ ये लेवल टूटेगा। ठीक है, अब एक बार मैं आपको ना इंटरेस्टिंगली मंथली चार्ट भी दिखाता हूँ। आप पूछोगे कि 24,000 का लेवल इतना क्रूशियल क्यों है। 24,000 का लेवल अब प्रीवियस वीक लो है, और प्रॉब्ली इस वीक का लो तो और भी नीचे है। 23,895 है इस वीक का लो, सॉरी मंथ का लो, द लो ऑफ अगस्त, राइट, इट्स 23,895। बट हम यहाँ पे गए और हम यहाँ पे सस्टेन नहीं किए, तो मेरे लिए अभी भी रेलेवेंट लेवल यही रहता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बिल्कुल ट्रेड नहीं हुआ। सो द एग्जैक्ट लेवल अगर आप देखोगे, सो 24,000 इज प्रीवियस मंथ्स लो, एंड नाउ इन द कमिंग वीक इट विल बी प्रीवियस वीक्स लो। और आप अगर ओ आई डेटा भी देखोगे ना, इफ़ यू सी द ओ आई डेटा ऑफ 3 weeks, coming 3 expiries combined, sorry, this is bank nifty will go, right, will combine all 3 weeks. 24,000 has almost 1 crore put OI. So if in case this level breaks, it's a, I think in my point of view, it's a straight 1,000 point fall, nobody can stop it, but we need to figure out how it will fall। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। तो सबसे दो क्रूशियल लेवल हो गए आपके मंथली पे, तो चलो ठीक है, अभी तो मंथ एंड नहीं हुआ है। वीकली पे वी हैव क्लोज्ड बिलो द लेवल ऑफ प्रायर वीक लो, सो विच इज़ अ पॉइंट टू बी नोटेड। और मैं इस पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि आप ये देखो, हर बार क्या होता था, वीकली में नीचे आता तो था, बट क्लोजिंग कभी नहीं मिलती थी। आज भी मार्केट ने ट्राई किया देखो क्लोजिंग ऊपर करने का, लेकिन इतनी बड़ी क्लोजिंग नहीं दे सकता मार्केट, इतना बड़ा मूवमेंट नहीं दे सकता, वो स्टीम ही नहीं बची मार्केट में। एंड द ओनली रीज़न कि मार्केट ने ये ऐसा मूव नहीं दिया, या यू नो सम वॉट काइंड ऑफ मूवमेंट लाइक दिस वेर इन मार्केट इज गोइंग अबव प्रीवियस वीक लो एंड क्लोजिंग देयर, तो दिस इंडिकेट समथिंग। हो सकता है कि आपका प्रायर डे हाई निकल के थोड़ा और ऊपर चल जाए, बट कहीं ना कहीं से रिवर्स करेगा, और जब ये रिवर्स करेगा इट विल रिवर्स विद अ गुड स्ट्रेंथ। क्योंकि देखो क्या होता है ना, मैं आपको एक प्राइस एक्शन पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। जब भी आपका मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होता है, तो हम हमेशा क्या फॉलो करते हैं, ये फर्स्ट पुल बैक है, फर्स्ट पुल बैक में आप, ठीक है, फर्स्ट पुल बैक में आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा, लेकिन जो बड़े बियर्स है, जो मार्केट को पोजिशनली शॉर्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months, तो वो क्या एम करते हैं कि वो कभी भी फर्स्ट पुल बैक नहीं करते। अब देखो स्मार्ट मनी होगा ना, उसको एंटर करना होगा ना शॉर्ट्स में, वो क्या करेगा, यहाँ पे जितने भी, क्योंकि ये वाला जो गैप डाउन हुआ था आपका, दिस वॉज सर्टेनली बिकॉज आप जो जापानीज का येन कैरी ट्रेड अनवाइंडिंग हुई थी, जो भी, और ये जो मिडिल ईस्ट का टेंशन चला था, उसकी वजह से गैप डाउन हुआ था, और उसके बाद से बुल्स रिकवर नहीं कर पाए। तो स्मार्ट मनी, रिमेंबर द स्मार्ट मनी हैज स्टिल नॉट एंटर्ड द बेरिश ट्रेड्स। और राइट, ये बात याद रखना। तो कभी भी आपका टॉप से पहला पुल बैक आए ना, उसको कभी भी सेल ऑफ मत करना। आप कभी भी देखो, आप अगर हिस्ट्री में भी जाओगे ना, ये मार्केट का टॉप था, यहाँ से आया, मार्केट ने पहला पुल बैक दिया, फिर मार्केट ले गया 2 वीक्स, 2 वीक्स ऐसी फीकी बनी। तो अब 2 वीक्स कंटिन्यूस यहाँ पे फीकी बने, नेक्स्ट 2 वीक्स स्ट्रॉन्ग बेरिश। ऑलराइट, तो ये हमेशा एक प्राइस एक्शन पॉइंट ध्यान रखना कि पहले पुल बैक में कभी ट्रेड नहीं करना। और ये चीज़ें आप जब बॉटम आउट होता है तब भी मार्केट आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे पहला आया, ये दिस वाज द इतनी स्ट्रॉन्ग रैली का, दिस वाज द फर्स्ट पुल बैक आया, उसके बाद मार्केट गया ऊपर। अब यहाँ पे बहुत सारे बुल्स ने सोचा होगा कि वी आर कमिंग नियर प्रीवियस वीक हाई, और यहाँ से बुलिश जाता है। फिर क्या हुआ, फर्स्ट पुल बैक, लिटिल बिट रिट्रेसमेंट, एंड अगेन बेरिश, फिर ये। तो ये चीज़, दिस थिंग इवन कैन रिपीट इट हियर। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे भी ऐसा है, फर्स्ट पुल बैक, मार्केट कहाँ तक गया, इसके ऊपर तक, फिर यहाँ पे समवॉट इट वाज अ डबल टॉप, एंड यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट आया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फोकस करनी है, सॉरी, राइट। तो अब यहाँ पे क्या डिस्कशन का पॉइंट है हमारे पास, कि ये फर्स्ट पुल बैक है, एंड प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि अगर प्रायर डे के हाई के निकले तो हम एक वीकली कैंडल कुछ ऐसा क्लोज कर दे। बट रिमेंबर, आपको पोजिशनली बुलिश कब होना है, या फ्री माइंडेड बुलिश कब हो गए आप, व्हेन वी क्रॉस प्रायर वीक हाई। तो प्रायर वीक हाई का एक लेवल हम मार्क कर लेते हैं 2581। 2581 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है, तो पहला लेवल आपको देखने को मिलेगा 25, पोजिशनली बता रहा हूँ, 25,200 देखने को मिलेगा। 25,200 निकलता है तो आई थिंक 25,500 हमारा पोजिशनल टारगेट हो जाएगा। उसके बीच में लाइक इट विल नॉट बी स्ट्रेट मूव, बट हाँ, आ सकता है ये मूव। ठीक है, ये चीज़ आपको
यू नीड टू कीप दिस थिंग इन माइंड। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके, एंड अगर आप यहाँ देखो, इफ़ यू सी राइट, अगर आप सिर्फ ये वाला पार्ट हटा दो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे वी क्लोज्ड, वी चेंज द ट्रेंड हियर, बट नेक्स्ट कैंडलस्टिक अगेन वाज बुलिश। तो हो सकता है अब अगर यहाँ पे हम प्रीवियस वीक हाई निकालें तो वी कैन गिव अ कैंडलस्टिक लाइक दिस, वी कैन प्ले दिस मोमेंटम, वो हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे, बट दिस इज अ नेगेटिव साइन एंड ये एक पहला पुल बैक है। तो ऐसा होगा नहीं कि ये पहले पुल बैक में यूं का यूं ही आ जाए, ऐसा नहीं होता, दिस दिस डज नॉट हैपन। प्राइस एक्शन बनता है वीकली टाइम फ्रेम पे भी, कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनेगा, राइट। सो आपको सीधा ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वीकली ट्रेंड चेंज हो गया तो मंडे को खुले और पुट लेके बैठ जाओ, नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। ठीक है, अब लेट्स मूव टू डेली टाइम फ्रेम। देखो डेली पे हमने ट्रेंड वापस पॉजिटिव कर दिया है, बिकॉज वी हैव सेटिस्फाइड द थ्री कैंडल स्टिक रूल, क्लोज अबव द प्रायर हाई, क्लोज लो बिलो द प्रायर लो, लो अबव द प्रायर लो, एंड हाई अबव द प्रायर हाई। ठीक है, तो ये ट्रेंड चेंज हो गया तो आपको प्रायर डे हाई और प्रायर डे लो मार्क करना है, फॉर मंडे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये बहुत एक थिन रेंज है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो जो हम चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 24,423 लेवल निकलता है तो वी कैन सी द लेवल ऑफ 24,500 द फर्स्ट लेवल। ठीक है, 24,500, 24,500 के ऊपर सीधा एक आपको एक शॉर्ट कवरिंग मिलेगी 685 तक। सिंपल है, कोई आपको इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें आपको कुछ नहीं है। प्रायर डे हाई निकले, आप फ्यूचर्स लॉन्ग करो, एक हेज में ले लो आप अपना कोई भी कॉल सेल या फिर पुट बाय आउट द मनी, ताकि अगर मार्केट स्ट्रांगली गिरता है तो आप अपना फ्यूचर में लो एस एल और उसको पड़े रहने दो। ठीक है, अगर 24, तो आई थिंक इतनी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। अब देखो इसमें डेली टाइम फ्रेम में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ मार्केट कैसे गया, ये पहला पुल बैक था, देखो ये चीज़ डेली में भी फॉलो होती है, दिस वॉज द फर्स्ट पुल बैक, मार्केट ऊपर गया, अब मार्केट ने स्लोली स्लोली एक प्राइस एक्शन ऐसे फॉर्म करने लग गया। और आपने, अगर आपने प्राइस एक्शन पढ़ा है तो आपने हमेशा एक ऐसा प्राइस एक्शन देखा होगा कि ये मार्केट कुछ ऐसा बनाता है और फिर ये ब्रेक डाउन आता है, राइट। तो यहाँ पे कुछ बन रहा है बट एक थोड़े से डिफरेंट पैटर्न में बन रहा है ये प्राइस पॉइंट। तो ये एक, अगर आप इस पॉइंट को देखो तो ये एक यहाँ पे टिल्टेड हेड एंड शोल्डर, कोई ऐसा पैटर्न होता नहीं है बट ये एक टिल्टेड हेड एंड शोल्डर बना सकता है मार्केट यहाँ तक का। ठीक है, तो इसको हम एक बार फिबोनाची से भी प्लॉट करके देख लेंगे तो मार्केट क्या होगा, ये पहला शोल्डर, ये हेड, ये दूसरा शोल्डर, मार्केट यहाँ आने के बाद ये जो गैप है ना, ये कवर करने का परफेक्ट पॉइंट होगा यहाँ पे शॉर्ट करने का फॉर अ मूव लाइक दिस। ठीक है, सॉरी, फॉर अ मूव लाइक दिस। ओके, तो आपको यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना, ये वाला पॉइंट अभी आप शॉर्ट्स आपके पास बनेंगे नहीं, राइट। ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी साइड अगर आपका प्रायर डे लो निकलता है विच इज़ 24,312, तो 24,300 अगर टूटेगा तो एक मूव 250 तक मिलेगा, और अगर 250 भी निकलता है तो आपको 24,200 एंड इवेंचुअली 24,80 आपको मिलेगा। बट मेरे हिसाब से जो डेटा बन के गया है वाई में, ऑलराइट, उसके हिसाब से मार्केट को 24,200, 24,150 पे एक सपोर्ट बना देना चाहिए। अब देखो सिंस 3 डेज मार्केट इस ट्रेंड लाइन से चले जा रहा है, तो हो सकता है कि अगर प्रायर डे लो निकले तो मार्केट यहाँ तक का ही मूव कर सकता है। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको लॉन्ग करने की, बट यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर ये टूट रहा है, ये ट्रेंड लाइन टूट रही है यहाँ से, तो ये मूव आ सकता है। ठीक है, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ट्रेंड लाइन कि जो आ रही है, ये आर्ली पे हम देख लेंगे क्या ट्रेंड लाइन आ रही है, बट वीकली टाइम फ्रेम पे जो डेटा मैंने आपको समझाया, जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि पहला पुल बैक है उसमें बड़ा शॉट नहीं बनाएंगे हम, आई थिंक प्रॉब्ली विल मेक अ वेरी बिग शॉट एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट। ये तीन लेवल्स, ये दो लेवल्स क्रूशियल है जहाँ पे हम बड़े शॉट्स बना सकते हैं फॉर अ मूवमेंट लाइक दिस और फॉर अ मूवमेंट लाइक दिस। अब देखो अगर ये निकल गया ना तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी यू, एक पुल बैक यू, और यहाँ पे हम बनाएंगे यू। और मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन और करता हूँ कि ये पॉइंट क्रूशियल क्यों है। ये देखो, if you take Fibonacci from this point and if you plot it like this, तो एग्जैक्टली जो आपका 61% रिट्रेसमेंट निकल के आ रहा है वो 24,620, और थोड़ा मोमेंटम एक्सटेंशन मान लो तो ये गैप कवर होगा 24,690 तक। तो ये दो लेवल्स क्रूशल है आपके लिए फॉर द नेक्स्ट वीक, कि अगर हमारा 24,690 और 624, तो मैं फिबोनाची हटा के देखो 690 तो हमने मार्क कर रखा है और 624 और हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने 624 मार्क कर लिया। तो अगर प्रायर डे हाई निकलता है निफ्टी पे, बहुत सिंपल ट्रेड है,
आप फ्यूचर्स लॉन्ग करो और यहाँ तक का एक ये 300 पॉइंट्स टू 400 पॉइंट्स का मूवमेंट प्ले करो, ठीक है। प्रायर डे लो निकले तो आप यहाँ तक का एक ट्रेड बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको ये ट्रेंड लाइन मिलेगी तो ये एक ट्रेड बन सकता है, बट यहाँ पे अगर ये एक पुल बैक के बाद टूटा तो यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ 24,100 या 24,50 पे एक अच्छा सपोर्ट आएगा आपके पास, ठीक है। 24,000 इज़ अ वेरी वेरी बिग क्रूशियल लेवल, इट इज़ अ वेरी बिग लेवल इन परस्पेक्टिव ऑफ ओ आई, इट वोंट ब्रेक दैट मच इजीली। और एक प्राइस एक्शन पॉइंट और ध्यान रखना, अगर किसी भी बड़े लेवल को टूटना तोड़ना है ना मार्केट को, तो मार्केट हमेशा वहाँ पे सस्टेन करेगा। ये देखो मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया बिकॉज उसको 23,500 तोड़ना था, मार्केट सस्टेन किया, एक पुल बैक दिया और फिर ऊपर चला गया, ठीक है। दिस थिंग्स रिपीट एवरी टाइम, रिपीट्स इटसेल्फ एवरी टाइम। ये देखो यहाँ पे मार्केट कितना सस्टेन, अब देखो जब भी मार्केट, देखो किसी भी प्राइस पॉइंट पे अगर यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है वो गिव अप कर देंगे, सेलर्स आ जाएंगे। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, मार्केट ऊपर जाता है बेयर्स की वजह से और मार्केट नीचे आता है बुल्स की वजह से। ये आप, अगर आपको किसी ने ये उल्टा सिखाया हो कि बुल्स लेके जाते हैं ऊपर और बेयर्स लेके आते हैं नीचे, तो ये आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। बुल्स अगर जब छोड़ देते हैं ना मार्केट को, सॉरी बेयर्स मार्केट को खुला छोड़ देते हैं, तो मैंने आपको कुछ वीडियोस में पहले, जो रेगुलर वियर होगा जो हर वीडियो देखता है रिलीजियसली, तो मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे बताया था कि इस पॉइंट पे बेयर्स ने छोड़ दिया है कि ले जाओ जितना ऊपर ले जाना है, क्योंकि ऐसी कैंडलस्टिक जब भी बनती है जब बेयर्स नहीं होते मार्केट में, जब मार्केट में बेयर्स होते हैं ना तब ऐसा कुछ बनता है। सो द मार्केट फॉल्स ड्यू टू बेयर्स, क्योंकि द मार्केट फॉल ड्यू टू बुल्स एंड द मार्केट राइजेस बिकॉज ऑफ बेयर्स, क्योंकि अगर बेयर्स छोड़ देंगे तो मार्केट बढ़ेगा, बुल्स गिव अप कर देंगे तो मार्केट गिरेगा, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो डेली में क्या आया था प्राइस एक्शन पॉइंट, पहला पुल बैक सेल नहीं हुआ, यहाँ से अच्छा शॉर्ट बना, ये दूसरा पुल बैक है, ठीक है। तो डेली पे प्रोबेबिलिटी बन रही है कि ये दूसरे पुल बैक का रिट्रेसमेंट जहाँ तक करेगा करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक करना है करो। एक बार बस आर्ली में प्रीवियस आर्ली का लो टूटे या प्रीवियस डे का लो के नीचे क्लोजिंग हो, वहाँ पे शॉर्ट बनाएंगे और वहाँ पे शॉर्ट करके पैसा प्रिंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया डेली का डिस्कशन। तो डेली में बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकले विच इज़ 24,420, तो 24,500 एंड इवेंचुअली 24,600 के लेवल्स आ सकते हैं, और ये तो बहुत क्विक मूवमेंट आएगा आपका, क्योंकि यहाँ से देखो ये लेवल आपका, अगर आप इफ़ यू सी राइट क्लियरली, ये लेवल आपका बहुत ईजी आएगा, क्योंकि यहाँ से ये पूरा एक अनफिल्ड गैप है, ठीक है। सो फ्रॉम 420 टू 680 690 ऑलमोस्ट रफली 200 पॉइंट्स, 200 250 पॉइंट्स इजी मूव है, ये फॉरगेट मत करना कैप्चर करने के लिए, ठीक है। नहीं तो यू विल थिंक कि भाई ठीक है मैं ये मिस करके यहाँ करूँगा, हो सकता है यहाँ भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये अगर ट्रेंड लाइन आ रही है और इसको हेड एंड शोल्डर बनाना है ऐसा कुछ, तो यहाँ तक मार्केट जाएगा या मोमेंटम में यहाँ तक, यहाँ से शॉर्ट होगा, ठीक है। तो ये मूवमेंट कैप्चर करना मत भूलना, और प्रायर डे लो के अगर नीचे निकले तो लेवल्स मैंने आपको बता ही दिए। अच्छा, अब सारे लेवल्स को हटा के अगर मूविंग एवरेज एनालाइजेशन भी करो, आप एनालिसिस करो, तो मूविंग एवरेज में देखो मार्केट 1 2 3 4 दिन तक आपका 5 और आपका 50 के नीचे अटका हुआ था, अभी आपके 5 के ऊपर क्लोजिंग दिया, बट रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है 20 पे, ठीक है। तो 20 पे रेजिस्टेंस, अगर मार्केट कल इस 20 का क्या लेवल आ रहा है 24,406, तो वही बोल रहा हूँ ये सारा लेवल एक ही है। अगर 20 के ऊपर आर्ली क्लोजिंग होती है, मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी मंडे के लिए, 24,420 के ऊपर आर्ली क्लोज हो जाए मंडे को, लॉन्ग चले जाना, स्टॉप लॉस दे दो नीचे 80 से 60 पॉइंट का निफ्टी में, ठीक है। इतनी स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई। आर्ली पे चलते हैं एक बारी। आर्ली में देखो क्या बन रहा है, आज पूरा साइडवेज था, तो वही है देखो, अब हम आर्ली में 15 मिनट्स में चलते हैं, आर्ली तो ठीक है। अब आर्ली में आपको ये जो वाला मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि नीचे जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इफ़ आई एम टेलिंग यू, ये वाला जो मूवमेंट है नीचे से देखो, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये देखो एक नीचे ट्रेंड लाइन है, तो अगर अब मार्केट ने जो रेंज बनाई हुई है ना, ये देखो ये वाली रेंज आज की और ये रेंज, तो ये क्या दो लेवल्स हैं 24,400 और 24,340, ये 60 पॉइंट्स की रेंज है, इसको ब्रेक होने देना, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, बट याद रखना 24 आपका 380 के करीब का लेवल है, 390 एंड नीचे आपका 340, ठीक है। ये 40-50 पॉइंट की रेंज अगर टूटती है, आर्ली क्लोज बिलो 24,340 330, तो एक आपको ये वाला मूव मिल सकता है डाउन साइड पे, प्रोबेबिलिटी है वो, मैं आपको सुबह अपडेट कर दूंगा ओपनिंग पे, और आज यूएस मार्केट पे बहुत डिपेंड करता है क्या होता है। और 15 मिनट चार्ट पे हम डिस्कस कर लेंगे मंडे के लिए कि कहाँ ओपनिंग होने पे आप क्या डिस्कस लेवल ले सकते हो, ठीक है। लेट्स गो टू स्ट्रेट 15 मिनट्स। अब मंडे का डिस्कशन देखो क्या होता है। हमने कल के डिस्कशन में क्या डिस्कस किया था कि अगर
मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाएगा, तो यहाँ पे जितने भी लोग सेल करके गए ना वो वेट करेंगे कि मार्केट वापस नीचे आए। मार्केट आया नहीं नीचे, एंड अब बुल्स भी वो गए, क्योंकि देखो लास्ट क्या हुआ था, यहाँ पे कैरी करके गैप डाउन हो गया। फिर अगर गैप अप भी खुल रहा है तो मार्केट क्या कर रहा है आपका, आपको ट्रैप कर रहा है। ठीक है, तो अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मार्केट ऑन द अपसाइड, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो मार्केट कैन कंटिन्यू अनटिल अनलेस ये दो रेंजेस निकलेंगे ऑन द अपसाइड, 24,420 या फिर नीचे पे 24 आपका 300। ठीक है, मार्केट बहुत बड़ा गैप खुल जाए तो ये वाले जितने आज बुल्स है ना ये सारे एक प्रॉफिट बुक तो करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल गया यहाँ कहीं 24,500 पे खुल गया तो 500 से 400 एक मूव आएगा, क्योंकि 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो थोड़े से बियर्स भी एंटर करेंगे। ठीक है, तो 500 के आसपास अगर मार्केट खुलता है बड़ा गैप अप, तो कॉल्स में एंटर मत करना खुलते ही, ये बात याद रखना। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, लेट्स सपोज 200-250 पॉइंट का गैप डाउन खुल जाता है यूएस मार्केट को देखते हुए, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। देखो बहुत बड़ा अगर गैप डाउन खुलेगा ना, तो ये वाले जो जितने लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया ना उनको एक एग्जिट मिलेगा। ठीक है, और जितने लोगों ने आज भी एक शॉर्ट बनाया उनको भी एक एग्जिट मिलेगा। तो बहुत सारे ट्रैप्ड बेयर्स हैं जो इस पूरे गैप में ट्रैप्ड है, उन सबको एग्जिट मिलेगा। ये बात याद रखना अगर गैप डाउन होता है तो। इफ़ द मार्केट इज गैप डाउन, गैपिंग डाउन अराउंड 100 to 150 पॉइंट्स, तो यहाँ पे कहीं खुल रहा है या यहाँ पे कहीं खुल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि मार्केट एक पुल बैक दे सकता है। कहाँ तक, आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग तक। प्रीवियस डे क्लोजिंग ये है, तो यहाँ पे कहीं खुल रहा है तो ये आपका एक पुल बैक आ सकता है। इस चीज़ का टेक केयर करना। अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है, बेस्ट केस सिनेरियो मार्केट में कोई गैप ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। जो होना चाहिए मार्केट में इंट्राडे होना चाहिए, क्योंकि हम कैरी नहीं कर रहे हैं कुछ भी, तो हमें गैप का दिक्कत नहीं है। तो गैप होता है तो क्या होता है, बुल्स बेयर्स दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑलराइट, तो ये था पूरा निफ्टी का आपका डिस्कशन इन रिगार्ड टू व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक एक जनरल आपको एक पर्सपेक्टिव दे देता हूँ मैं ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मतलब मेरे हिसाब से अगर ये लेवल टूटा तो क्या होगा। देखो जनरली डेली पे अपन क्या डिस्कशन करते हैं कि भाई ये दूसरा पुल बैक है, मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन दे रहा है। अब बस ये देखना है कि रिवर्सल कहाँ से देता है। रिवर्सल हमने डिस्कशन कर लिया है कि सबसे प्रोबेबिलिस्टिक लेवल है 24,700 का लेवल, 690-700। ये गैप कवर करने के बाद मार्केट देगा, क्योंकि ये गैप कवर क्यों होगा आप खुद सोचो। जो आपके बड़े बेयर्स हैं उनको एंटर करना है, तो वो क्या कर रहे हैं, मार्केट को उन्होंने छोड़ दिया। अब बेयर्स ने मार्केट को छोड़ दिया तो बुल्स को क्या लगेगा कि कोई शॉर्ट करने वाला है नहीं, खरीदते जाएंगे वो लोग। अब आपका क्या होता है, म्यूचुअल फंड का पैसा तो आता ही है। तो ये देखो आज खुला पहला मूव ऊपर, ये म्यूचुअल फंड का पैसा घुस गया। हर बार ऐसे होता है, हर दिन ऐसे होता है, खुलता है पहला मूव आपका प्रोबेबल, ये म्यूचुअल फंड की आपकी 300-400 करोड़ की बाइंग आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ बस आपको टेक केयर करनी है मार्केट में। ये आपके लेवल्स हैं, मार्क करना। मैं यहाँ पे पॉज करके आप मार्क कर लो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह पे फंस चुका है। अब देखो बैंक निफ्टी में सीधा वीकली पे चलते हैं, एंड इसमें क्या डिस्कशन करना है। देखो वीकली में तो ये प्रीवियस वीक के लो के नीचे इसने तो ट्रेंड पहले ही चेंज कर दिया था। अगर आप इसको ऑन अ ब्रीफ देखो तो काफ़ी नेगेटिव क्लोजिंग है वीकली के बेसिस पे। कॉन्ट्ररी 1 2 3 4 5 हफ्ते हो गए मार्केट को गिरते हुए। बट द पॉइंट टू बी नोटेड, और ये चीज़ है ना, मैं एच डी एफ सी बैंक के आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा अभी। ये चीज़ें देखो, यहाँ से मार्केट ने अच्छी रिकवरी दी है आज। ये एक मार्केट ने हैमर बनाया है, यहाँ पे एक इन्वर्स हैमर बना था और यहाँ पे एक काइंड ऑफ बुल हैमर है, बट वो रेड है। तो आपको निफ्टी में मेरे को देखो क्लोजिंग तो वीक है, नो डाउट, बट मार्केट बैंक निफ्टी बहुत ओवर स्ट्रेच हो चुका है। मतलब 4 हफ्ते से गिर रहा है, तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है। और ये पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, जो इसमें भी गैप क्रिएटेड है। ठीक है, और ये लेके जाएगा शायद आपका एच डी एफ सी बैंक 51,100 और ऐसा कुछ आ सकता है। या फिर आपका यू नो अभी देखो मार्केट ट्राई कर रहा था कि 20 एम ए के नीचे क्लोज दे दे, क्योंकि अगर 20 एम ए के नीचे क्लोज हो जाता, तो लास्ट टाइम जब 20 एम ए के नीचे क्लोज हुआ था तो आपको मालूम है यहाँ पे देखो क्या हैवॉक क्रिएट हुआ था। ये देखो 50 एम ए तक आ गया था वीकली पे। तो आज मेरे को बैंक निफ्टी में निफ्टी से ज़्यादा थोड़ी सी बुलिश क्लोजिंग लग रही है, क्योंकि ये हैमर बना है। एंड जनरली एक जब यहाँ पे देखो लोगों ने शॉर्ट किया लास्ट वीक, अब इस वीक में पूरा खींच 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 के बैंक को ऊपर ले आए। तो आपको ध्यान क्या रखना है इसमें, द लेवल ऑफ 5750। ठीक है, 5750 प्रायर वीक हाई है और आपका 49,678 प्रायर वीक लो है। अगर इसको मंथली में भी एक बार आप देखोगे तो मंथली में ये 5 EMA पे सपोर्ट ले रहा है।
और प्रीवियस मंथ अब देखते हैं इस मंथ के एंड में क्या होता है, बट मंथली अभी डिस्कस करने का मतलब है नहीं। ठीक है, इस मंथली का अगर हाई आप लगाना चाहो तो लगा लो, बट वो ठीक है, वो तो वीकली में भी आपको रिफ्लेक्शन उसका दिख जाएगा। तो देखो, वीकली में अगर अब कमिंग नेक्स्ट वीक 50 ऑन द अपसाइड, मैं तो बैंक निफ्टी में आपको यही प्रेफर करूंगा कि बैंक निफ्टी और निफ्टी सिंक में चलेंगे। और बैंक निफ्टी तोड़ेगा 5776, तो निफ्टी तोड़ेगा 24,500। और 24,500 टूटा तो 690 700 तक बैंक निफ्टी ही खींच के लेके जाएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ अभी भी। तो ये जो आपका यहाँ पे गैप डाउन हुआ था ना, आपको मैं दिखाता हूँ डेली पे। ठीक है, वीकली पे एक बार आते हैं वापस, बट डेली पे ये जो गैप डाउन क्रिएट हुआ है ना यहाँ से, ये देखो इस पॉइंट से ये जो गैप डाउन क्रिएट हुआ है, ये पूरा आपका कवर हो सकता है, प्रोवाइडेड आपके मार्केट्स इस लेवल के ऊपर निकल जाए 5750। तो अगर मार्केट 5750 के ऊपर निकलता है, ये एक इजी मूव है आपके लिए टिल दिस पॉइंट। इट विल नॉट ऑफ कोर्स कम इन अ स्ट्रेट मूव, ऐसे 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 करके आएगा। हो सकता है मार्केट जाए यहाँ पे, फिर एक ये दे दे, फिर एक ये, फिर एक ये, तो ये एक जो कांस्टेंट ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है नीचे, ये इसको ऊपर ले जा सकती है। ऑफ कोर्स अगर आप ऑन अ जनरल बेसिस इसका देखोगे तो एक बेरिश टेरिटरी में घुसा हुआ है, क्योंकि आपका 3 4 वीक से मार्केट गिर ही रहा है, रेट क्लोजिंग दे रहा है, तो थोड़ा बेरिश है बैंक निफ्टी। बट बैंक निफ्टी का जो ओआई डेटा देखो, ट्रेडर्स के हिसाब से हमेशा कैसे चलता है कि अगर मार्केट गिर रहा है, आप समझो इस बात को, इफ मार्केट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग, तो आपका जो पीसीआर डेट होता है ना वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, अब वो एग्रेसिव होता है तो वो उस एग्रेसिव को, मतलब मान लो कि आपका पीसीआर डेटा 0.6 चला गया या 1.5 चला गया, तो इट हैज़ टू रिट्रेस बैक टू 1। तो ये जो रिट्रेसमेंट आता है ना, ये आता है अनवाइंडिंग की वजह से। अब जिसने यहाँ पे शॉर्ट किया है, उसको दिख रहा है भाई मेरे को पूरा प्रीमियम टीके मिल गया और कुछ बचा नहीं, अब मेरा प्रॉफिट इरोड होने दिख रहा है, तो वो यहाँ पे अनवाइंडिंग स्टार्ट करता है अपने शॉर्ट्स की, जो उसने यहाँ शॉर्ट्स किए। तो जब वो अनवाइंडिंग स्टार्ट करता है तो ये स्लो स्लो मूवमेंट आता है। बट इस अनवाइंडिंग में अगर बुल आके जुड़ जाए और बियर कंप्लीटली ही छोड़ दे, तो ये शॉर्ट कवरिंग होती है बहुत बड़ी, प्लस बुल्स के मतलब बुलिश पोजीशंस के एडिशंस भी होते हैं। तो वीकली में अभी देखो मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में है बैंक निफ्टी, बट एक रिलैक्सेशन की यहाँ नीड है। ऐसा नहीं बोल सकते कि मार्केट गिर रहा है तो गिर ही रहा है, इन सर्टन कंडीशन गिर सकता है। बैंक्स के लिए कुछ खराब खबर आ गई, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए खराब हो गया, बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कुछ खराब हो गया, ग्लोबली कुछ खराब हो गया, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। बट फ्रॉम प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ये अगर आपका इतना गिर चुका है तो इसका ये जो रिट्रेसमेंट है, ये अच्छा खासा इस बुल रैली का रिट्रेसमेंट है, और यहाँ से मार्केट कुछ टेक्निकली करना, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑल टाइम हाई क्रॉस कर देगा, बट एक पुल बैक रिक्वायर्ड है। अगर आप यहाँ से भी शॉर्ट देखो तो ये ऐसा कुछ होना चाहिए टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपको लॉजिकली और टेक्निकली आपको दिखता है। ठीक है, यहाँ से तो बैंक निफ्टी में मैं नेक्स्ट वीक के लिए हल्का सा बुलिश रहूंगा, एंड आई विल लुक फॉरवर्ड फॉर द लेवल्स ऑफ 5750। 5750 के ऊपर निकलेगा तो आपको अच्छा मूव निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जिसने बाय किया होगा, यहाँ पे जिसने बाय किया होगा, यहाँ पे जिसने बाय किया होगा, वो बुक कर रहा होगा कॉन्स्टेंटली, बट उसको दिख रहा है अभी बैंक्स बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं पूरे निफ्टी को, एंड और भी जितने ऑटो वगैरह हैं, और बैंक्स कैन टेक द लीड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। डेली पे चलते हैं बैंक्स के। अच्छा, बैंक्स ने भी आज डेली ट्रेंड आपका पॉजिटिव कर दिया है, प्रीवियस वीक प्रीवियस डे हाई के ऊपर मार्केट ने बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे दी है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसको थोड़ा नीचे ही ले आते हैं ना, ये देखो इतना पतला सा रेंज है 720 750, तो 720 इसको ले आते हैं। 720 सॉरी 707, 50 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, कोई बात नहीं, 750 ही मार्क कर लो ऑन द अपसाइड। 750 निकलने दो मार्केट को, 750 मार्केट निकलेगा। अब देखो ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, देखो अगर मार्केट को बैंक निफ्टी को रेंज बाउंड रहना है तो ये कर सकता है, दिस इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी। सो इसलिए बोल रहा हूँ प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो मार्क कर लो। प्रीवियस डे लो है 5380, तो प्रीवियस डे लो के नीचे निकलेगा, आपको ये वाला मूव मिल जाएगा। देखो ये जितने भी लेवल्स बोलता हूँ ना, 5380 प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ये अपने नोट्स में लिख के मार्क कर लो, या फिर अपने चार्ट पे क्या करो, ऐसा एक रेंज बना लो, इसको आप ग्रीन से मार्क कर लो, रेड से मार्क कर लो, और यहाँ एक ऐसा नोट डाल दो, ये जीरोधा का है, यहाँ पे मैं तो एक ऐसा नोट डाल देता हूँ कि भाई ये मेरा प्रीवियस वीक हाई है, प्रीवियस डे लो, या प्रीवियस वीक जो भी होता है। ऐसा करोगे ना तो आपको माइंड में रहेगा कि भाई ये लेवल आ रहा है एंड मेरे को मेरी पोजीशन ऐड करनी है या काटनी है। ठीक है, काफ़ी ईजी हो जाएगी ट्रेडिंग, बिकॉज आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। और राइट, तो प्रीवियस डे हाई आपका हो गया 720 है, बट 750 मार्क करके रखो। 750 के ऊपर पहला लेवल आपको 51,000 मिलेगा स्ट्रेट 300 पॉइंट का, कोई दिक्कत ही नहीं आनी है इसमें। ठीक है, अब अच्छा ये पहला वाला ही टूल लगा हुआ है, ओके नो प्रॉब्लम। यहाँ तक आपको क्लियर मूव मिलेगा 750 तक। 750 क्रॉस करता है तो 51,000 तक आपको मूव मिलेगा। 51,000 गया तो 51, ये जो हमारा गैप है, जो हम मतलब
एंटिसिपेट भी नहीं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस लेवल के टूटने पे ये गैप फिल हो सकता है, तो वो हो सकता है। ठीक है, अपसाइड की अगर ये बात करें तो ये, अब अगर इसमें जनरल आप प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो क्या स्ट्रक्चर चल रहा है डेली पे, ये देखो पहला, अच्छा यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग रैली, पहला पुल बैक, नो सेल, यहाँ पे अच्छा सेल आया, फिर ये कॉन्स्टेंटली आपका लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है आपका। ठीक है, अब मार्केट, सॉरी ये पता नहीं आज कुछ तो बग हो गया है कि मेरे लेफ्ट क्लिक दबाने पे भी राइट क्लिक दब रहा है, नॉट श्योर क्या हो गया है, मेरे को शायद पीछे करनी पड़ेगी मेरी मिडिल फिंगर। राइट, ये देखो, ओके, ये लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है मार्केट का, एंड ये लोअर लो यहाँ पे, अब अगर मार्केट देखो नीचे से, ये पहला, अगर आप आर्ली पे भी देखोगे ना, आर्ली पे मार्केट नीचे से थोड़ा सा हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, ये देखो अगर आप आर्ली पे देखोगे तो ये मार्केट थोड़ा सा एक हायर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे। तो ये हायर हाई स्ट्रक्चर कब होगा, ये एक ट्रेंड लाइन से चल रहा है यहाँ पे, तो जब तक ये आपकी ट्रेंड लाइन प्रोटेक्टेड है, आप ये राइड कर सकते हो अपर ट्रेंड, या तो पुट बेच दो या फ्यूचर बाय कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। ठीक है, बट अगर ये जो आपकी ट्रेंड लाइन आ रही है नीचे से, तो ये टूटी सेम के साथ निफ्टी में भी, तो ये आपको मूवमेंट मिल सकता है यहाँ पे, पर फिर वही है, नीचे 50,000 का अच्छा सपोर्ट है। तो सेम आप चीज़ें आपकी यहाँ पे भी वो हो रही है, रिपीट हो रही है, निफ्टी जैसे कि यहाँ पे उधर आपका 24,100 2450 पे सपोर्ट था, यहाँ पे वही 50,000 का सपोर्ट है। ठीक है, तो ये ऐसे सिंक में चलते हैं आपके इंडेक्सेस, कभी ऐसे नहीं चलेगा, आप 80-90% आपका मूवमेंट ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ, हल्का सा, लेवल्स पे डिपेंड करता है, मेरा बायस तो बुलिश ही रहेगा, लेवल्स पे डिपेंड करता है। और आज देखो ना, एक बॉक्स रेंज बन के गई है। अब वीकली डिस्कशन हो गया, 15 मिनट्स में चलते हैं एंड सीधा डिस्कशन करते हैं मंडे के लिए ओपनिंग वाइज। ठीक है, अब आज देखो ना, मार्केट ने रेंज बना दी है, और सबसे बेस्ट के सिनेरियो होता है ये। तो आज की मार्केट की रेंज है ये, अगर आप टेक्निकली देखोगे, वो तो एक स्पाइक था, ठीक है, सुबह वाला, बट ये रेंज है 5450 से लेके 5600, ये 200 पॉइंट की रेंज है। अगर मार्केट इसको अपसाइड पे तोड़ता है तो ये वाला लेवल आएगा 750, डाउन साइड पे तोड़ता है तो 380 आ जाएगा, जो हमारा प्रीवियस डे लो है। तो सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। तो यहाँ पे ये जो बॉक्स रेंज बनी हुई है ना, अगर इसका ब्रेकआउट होगा तो आपको इतना ही पॉइंट और ऊपर मिल जाएगा, जो 750 तक आपको लेके जाएगा। ऑन द डाउन साइड अगर सिंपल है, और ये जो सब मैं एनालिसिस बताता हूँ ना, ये आप जाके मार्क करो अपने चार्ट्स पे, जब तक मार्क नहीं करोगे ना, आपको इसका फ़ायदा नहीं होगा, आप देखोगे भूल जाओगे। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक सपोर्ट फिर आ सकता है, क्योंकि 1 2 3 4 तो हो तो वीक चुकी है ये, तो ये अगर टूटा तो फिर मार्केट यूँ आ जाएगा, बट नीचे अब बहुत सारे ट्रेडर देखो क्या करेंगे, ये मार्केट यहाँ उनको ट्रैप करेगा। सिंपल एक चीज़ क्लियर करता हूँ, कि आप अगर ये ट्रेंड लाइन कर रहे हो ना, तो याद रखना यहाँ एक सपोर्ट भी है, तो हो सकता है मार्केट ट्रैप करे, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के यहाँ सपोर्ट लेके, कुछ ऐसा मार्केट तोड़ के ये सपोर्ट लेके यूँ चला जाए। इस चीज़ को याद रखना, बस माइंड में रखना कि यहाँ पे एक आपके पास 50,000 पे अच्छा सपोर्ट है मार्केट के पास। ठीक है, याद रखना ऑन द अपसाइड 5750 आपको याद रखना है, 5750 अगर निकलेगा तो सीधा आपका 51,000 आएगा लेवल, 51,000 भी निकला तो ये शॉर्ट कवरिंग आपको ट्रिगर होके मिलेगी, और अच्छा शॉर्ट फिर हम देखो, आप अगर डेली पे भी देखोगे ना, सारी ड्राइंग बार मैं डिलीट कर दूँ, तो ये मार्केट एक रेंज में चल रहा है अभी, जैसे ये एक चैनल चल रहा था ना यहाँ पे, इफ़ यू सी, एक ये जो चैनल चल रहा था ऐसा, तो बैंक निफ्टी हमेशा मोस्टली चैनल्स में ही चलते हैं, तो ये देखो, ये एक आप चैनल मार्क कर लो यहाँ पे, और ये डाउन साइड पे। ठीक है, ये चैनल का रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखना, मार्केट आ सकता है यूं, और यहाँ से फिर एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होएगा, फिर यहाँ से रिलैक्सेशन, फिर डाउन ट्रेंड, ये तो ये आपको देखो एंटिसिपेट करना जरूर, मतलब नॉट एंटिसिपेट, बट हिस्ट्री से आपको सीखना जरूरी है कि बैंक निफ्टी चलता कैसे। अब देखो, यहाँ पे एक चैनल मार्क किया, हर बार जब भी इसके लोअर एंड पे आया, रिवर्सल मिला है। अगर मैं ये चैनल भी हटा दूँ, आपको एक और चैनल दिखाता हूँ मैं, ये देखो, मार्केट ने कितना, बैंक निफ्टी का कितना बड़ा एक डाउन ट्रेंड इसी चैनल के बेसिस पे चला है। ठीक है, तो रफली रफली जो पोजिशनल शॉर्ट होता है उसको मालूम है भाई, ये मेरा चैनल रेजिस्टेंस है, यहाँ शॉर्ट हो जाऊंगा मैं। तो बैंक निफ्टी में ये एक आप ध्यान रखना, और इस चैनल को मार्क कर लेना यहाँ पे सिंपल से। ठीक है, ये एक चैनल को सिंपल मार्क कर लेना, और अब जब भी मार्केट इसके इस चैनल के अपर एंड पे जाएगा, यहाँ कहीं एक शॉट फिर आएगा। आप ठीक है, आप 4 वीक्स 5 वीक्स बाद आप आके इस वीडियो को देखना, आप याद करोगे कि ये सब एनालिसिस मैंने बताया था और ये एक्चुअल हो भी रहा है। ठीक है, तो लेवल वाइज मैंने आपको बता दिया है, बट आपको सिर्फ टेक केयर क्या करना है, मंडे को प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। ठीक है,
और भी मैंने आपको काफ़ी सारे प्राइस एक्शन पॉइंट बनाए हैं बताएं। ये एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज को टेक आउट होने देना। रेंज का हाई है 5600 और रेंज का लो है आपका 5400। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब चलते हैं ओआई डेटा पे। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं, ओआई डेटा पे चलते हैं। एंड आज का टोटल ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखोगे, आई थिंक निफ्टी का तो मैंने आपको दिखाई दिया है, तो फिर भी एक बार लास्ट में दिखाई देता हूँ। 4.49 करोड़ आपका ओआई डेटा बैठा हुआ है। चलो ये अगस्त की हटाओ, सिर्फ 14 अगस्त तक देखते हैं आप। ठीक है, अगर आप 14 अगस्त देखो तो मेजर आपका सपोर्टेड वही 24,000 पे। 24,000 टूटेगा, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है मार्केट कहाँ तक जा सकता है। ये देखो 23,600 और पीछे ले जाऊँ, ये देखो 23,500 पे बना हुआ है नेक्स्ट। तो 24,000 टूटा, 23,500 सिंपल मूव है। ऑन द बुल साइड 24,400 देखो टूटेगा, मेजर वही है। स्ट्रेट आपको मेरे हिसाब से तो ये कटते चले जाएंगे सारे शॉट्स। आपको 25,000 तक, तो 25,000 तो नहीं आएगा, बट हाँ मैं 600 700 पे चार्ट्स के हिसाब से 600 700 पे एक स्टॉप मान के चल रहा हूँ, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ठीक है, ये था इसका डेटा। बैंक निफ्टी का अगर डेटा देखना है देख लेते हैं, बैंक निफ्टी का भी डेटा। बैंक निफ्टी में देखो क्या दिख रहा है, आपका मेजर रेजिस्टेंस है 5500। तो इसलिए बोल रहा हूँ अगर 50 आपका 350 5400 निकला तो आपका 5500 ईजी आ जाएगा। ठीक है, आज 5500 था भी मार्केट पास, तो 5500 निकला मार्केट से, 5500 निकला तो आपका सीधा नेक्स्ट आएगा 51,000 जो हम चार्ट पे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 51,000 निकलेगा 51,500, बट यहाँ पे छोटे मोटे रेजिस्टेंस है 300 400 के, तो कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपका जो कॉल हुआ है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्कोप ज़्यादा है कि आपका शॉर्ट्स अनवाइंडिंग हो। ठीक है, ये बात मैंने आपको चार्ट पे भी बताई थी। ऑलराइट, अच्छा एक बार अब मैं आपको एच का चार्ट भी दिखाता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। अगर आप इसका एनालिसिस करोगे ढंग से तो आपको देखो एक पैटर्न दिखेगा। यहाँ पे आप एक ये लाइन लगा दो जहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, और आप एक अगर आप डूडल ड्रॉ करते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ये क्या कौन सा पैटर्न है। ठीक है, तो अगर ये एच बैंक में ये वाला लेवल निकलता है ना, ये देखो 1664, ये प्रायर डे हाई है, और अगर आप वीकली क्लोजिंग भी लोगे तो वीकली हाई भी यही है। ठीक है, तो ये अगर लेवल निकलता है इट इज़ वेरी बुलिश, और आपको सबसे पहला लेवल इसमें 1685 1700 एंड इवेंचुअली दिस शॉर्ट कवरिंग टिल 1726 देखने को मिलेगा। ये एक अच्छा ट्रेड बन के आ सकता है। सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूँ, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। पता नहीं सेबी वाले आ जाएं, पता नहीं कल को घर पे पकड़ लें मेरे को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा अब एक बार देखो आज फ्यूचर थोड़ा सा ऐड होके गया है। आज अगस्त के फ्यूचर जो है आपके 60 पॉइंट प्रीमियम में करीब करीब 40 45 पॉइंट प्रीमियम में ऐड हुआ है। आप देखोगे तो 400 पे है और 360 पे हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑलमोस्ट 40 पॉइंट प्रीमियम है। 35 40 ये जो था कल की क्लोजिंग पे, ये था ऑलमोस्ट 10 15 रुपये। ठीक है, 10 15 पॉइंट था। तो आज थोड़ा बुलिश डेटा बन के गया और चार्ट भी बुलिश होके गया है। तो वही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी पे अगर डिसेंट ओपनिंग होती है 60 70 पॉइंट्स गैप डाउन गैप अप, तो मार्केट ये आपको मूव दे के देगा आपको ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हम शॉर्ट करेंगे, बट मैंने आपको लेवल्स में डिस्कशन कर दिया है कि ये मूव प्ले कैसे करना है। ऑलराइट, तो बैंक्स का डिस्कशन हो गया, इसका डिस्कशन और क्या डिस्कशन चाहिए। अगर कुछ और डिस्कशन आपको चाहिए, आपको सही लगता है कि भाई मैं सही बता रहा हूँ, फॉलो होती है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि भाई मेरे को इस चीज़ का एनालिसिस चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई थिंक ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का वीडियो हो गया है ये फॉर द नेक्स्ट वीक। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने ट्रेडर्स के साथ शेयर करना, एंड दैट्स इट ट्रेडर्स। बी सेफ इन द मार्केट, हैप्पी वीकेंड।